عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے، اس درخواست کر لیتا ہوں، اس اپیل پر آپ لوگ غور کریں، ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جس خبر پر ہنگامہ مچا ہے اس کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا، اور وہ ہے این ڈی ٹی وی کے اینکر رویش کمار، جن کی پہچان بنی این ڈی ٹی وی سے، اور پھر ایشیا کا ایک امیر ترین شخص کس طرح این ڈی ٹی وی کو خرید کر اس کے سارے اصولوں کو بدلنے والا ہے۔ ناظرین گرامی میں این ڈی ٹی وی کے شریک چیئرپرسن پرونائے رائے اور ان کی اہلیہ رادھیکا رائے نے کس طرح صحافت کا آغاز کیا، کہاں سے اور کس طرح انہوں نے این ڈی ٹی وی کی بنیاد رکھی، پھر اب اس وقت کیا حالات بنے، ساری چیزیں سمجھنے کے لائق ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں، اور مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں اور نئے لوگ بھی اس میں جڑیں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اچھی سچی حقیقی اور حقیقت کی آئینہ دار خبریں جو سچی ہوں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی کچھ اخبارات کے حوالے سے 1 دسمبر کو شائع ہونے والے ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انڈیا کے مشہور ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی کے شریک چیئرپرسن پرونائے رائے اور ان کی اہلیہ رادھیکا رائے نے چینل کی پروموٹر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پرونائے رائے اور ان کی بیگم رادھیکا رائے این ڈی ٹی وی کا آغاز روکھے سوکھے سرکاری ٹی وی دوردرشن پر سن 1998 میں ایک شو کی شکل میں کیا تھا جس کا نام دا ورلڈ دس ویک، اس ہفتے کی دنیا ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ان کے ذہن میں کوئی عظیم منصوبہ نہیں تھا، اور یقیناً ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عالمی خبروں کی اس ہفتہ وار پروگرام کے پروڈیوسر سے ایک دن انڈیا کے پہلے 24 گھنٹے چلنے والے نیوز چینل کے کرتا دھرتا بن جائیں گے۔ اور پھر 3 عشروں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج ان دونوں میاں بیوی کا چینل دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص گوتم اڈانی کے ہاتھ فروخت ہونے جا رہا ہے۔ یہ سودا شور شرابے سے بھرپور ذرائع ابلاغ کی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اور اسے جو شخص خرید رہا ہے عمارت میں اس کا نام ایلن مسک اور جیف بیزوس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی دولت میں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ بندرگاہ سے توانائی تک پھیلی ہوئی کئی کمپنیوں کے 60 سالہ مالک مسٹر اڈانی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کے قریبی ساتھی ہیں۔ سچ پوچھے تو مسٹر اڈانی کے سوانح نگار آرین بھاسکر کے بقول انڈیا کے تمام سیاسی رہنماؤں اور سماجی شخصیات اور ہر قسم کی پارٹیوں سے اڈانی کے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ ہر حکومت کے لیے قابل قبول ہیں۔ رواں برس مارچ میں اڈانی کی ایک نئی کمپنی AMG میڈیا نیٹ ورکس لمیٹڈ نے ایک بڑی ڈیجیٹل بزنس کمپنی کوئنٹلیلین میں بھی کچھ حصص خرید لیے تھے، لیکن آرین بھاسکر لکھتے ہیں کہ اڈانی کی نظر میں یہ سرمایہ کاری اتنی معمولی تھی کہ وہ اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز نہیں کر سکتے تھے، تو کیا واقعی مسٹر اڈانی کی نظریں بڑے منصوبوں پر ٹکی ہوئی؟ گوتم اڈانی این ڈی ٹی وی کو کیسے چلائے گا؟ ایک سوال ہے۔ گوتم اڈانی انڈیا کے قابل اعتماد اور آزاد چینل این ڈی ٹی وی کو خرید رہا ہے، اس سے انڈیا کی صحافت میں کیا بدلے گا؟ این ڈی ٹی وی کی سالانہ محصولات $51 ملین ہیں اور اس کا منافع لگ بھگ $10 ملین سالانہ ہے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس کی دولت
260 अरब डॉलर हो, उसके लिए $10 मिलियन सालाना मुनाफा वाली कंपनी में आखिर क्या कशिश हो सकती है। लेकिन एनडीटीवी इंडिया का एक काबिल एतमाद टीवी चैनल है जिसने डेटा की बुनियाद पर इंतखाबी तजज़ियों की बुनियाद रखी और मॉर्निंग शोज और टेक्निकल और लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स की शुरुआत की। उसके तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नाजरीन की तादाद 3.5 करोड़ थी। अडानी ग्रुप समझता है कि वो एनडीटीवी के जरिए अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस सोच की एक झलक गौतम अडानी के हालिया इंटरव्यू से मिलती है। वो कहते हैं, आप एक मीडिया हाउस को क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते ताकि वो आज़ाद हो और आलमी सतह पर उसकी पहचान हो। इंडिया के पास अल जजीरा या फाइनेंशियल टाइम्स के साथ मुआवजे के लिए एक भी मीडिया हाउस नहीं है। बाज़ लोग अडानी ग्रुप की जानिब से एनडीटीवी को कंट्रोल करने को शक की निगाह से देखते हैं। एनडीटीवी का शुमार इंडिया के चंद एक ऐसे मीडिया हाउसेस में से है जो अपने हम असरों के बरअक्स जंगी जुनून से दूर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और रॉयटर्स के इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म के एक सर्वे में जाहिर हुआ कि 76% लोग एनडीटीवी को एक काबिल एतमाद टीवी चैनल समझते हैं। गौतम अडानी के कंट्रोल में एनडीटीवी की इदारती आज़ादी के बारे में शुकूक का इजहार किया जा रहा है। इंडिया में एक वसी मीडिया इंडस्ट्री की मौजूदगी के बावजूद आज़ादी सहाफ़त के बारे में इंडिया का रिकॉर्ड काबिल रश्क नहीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का शुमार 180 ममालिक में से 150वें नंबर पर है। इंडिया की तारीख में प्रेस फ्रीडम के हवाले से इतनी खराब रेटिंग कभी नहीं रही। वज़ीर आज़म मोदी की भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की आज़ादी सहाफ़त के मेयार को परखने के तरीक़ेकार पर सवाल उठाती है। अडानी ने कहा कि उनके ग्रुप के लिए एक आलमी मीडिया ग्रुप बनाने की कीमत बहुत कम है और उन्होंने एनडीटीवी के सरबराह प्रणय राय को अपने ओहदे पर रहने की पेशकश की थी। अडानी की मीडिया कंपनी ने इस साल बिजनेस न्यूज़ प्लेटफॉर्म ब्लूमबर्ग क्विंट को भी खरीद लिया। ये सब अगस्त में कैसे शुरू हुआ? इस साल अगस्त में अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में बिलवास्ता तौर पर 29.18% हिस्से खरीदे। जिस तरह से अडानी ने एक नामालूम कंपनी के जरिए एनडीटीवी में हिस्सा खरीदा है, उसे होस्टाइल टेक ओवर यानी इंतजामिया की ख्वाहिशात के खिलाफ कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश समझा गया है। यानी कि जब इसके हिस्से खरीदे जा रहे थे तो पता ही नहीं था कि होस्टाइल टेक ओवर में जो है एक नामालूम कंपनी के जरिए इसे वो अडानी ग्रुप खरीद रहा था। दरअसल अडानी ग्रुप ने एक्सचेंज को बताया था कि उसने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी वीसीपीएल को खरीद लिया है। अडानी ने 100% हिस्सा तकरीबन 114 करोड़ रुपए में खरीदा। मीडिया और कंसल्टेंसी के कारोबार से मुंसलिक वीसीपीएल के खातों की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वीपीसीएल ने एनडीटीवी की एक प्रोमोटर ग्रुप कंपनी और आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 29.8% इक्विटी शेयर्स गिरवी रखे थे। तो नाज़रीन ग्रामी, ये सब तफसीलात आपको जो है bbcurdu.com में भी मिल जाएंगी जहां से पेश किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त एक ही चैनल बचा था जिस पर एतबार किया जा सकता था, लेकिन उसको भी अब अडानी ग्रुप ने ख़रीद लिया। इसका दर्द अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी गुज़िश्ता कई हफ्तों से इस बात को लेकर के तशवीश का इजहार किया जा रहा था और लोग शक व शुबे में थे कि जो है अडानी ग्रुप के ख़रीदने के बाद क्या रवीश कुमार, जिसकी वजह से एनडीटीवी चैनल की पहचान बनी थी, या कहा जा सकता है कि एनडीटीवी में अपने खुसूसी प्राइम टाइम की वजह से जो मशहूर हुए और अपनी हक बयानी को लेकर के सच बयान करने को लेकर के रवीश कुमार, उन्होंने भी अपना ऑफिशियल आज जो है इस्तीफ़ानामा लोगों के सामने रखा और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, फेसबुक पर भी उनका पेज बना और आज चलते चलते उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए सामने जाने की कोशिश की। लेकिन उनके चेहरे पर सजी हुई मुस्कुराहट पूरी दुनिया को ये बता रही थी कि मुझे ख़रीदने की कोशिश हुई लेकिन मैं बिका नहीं। मुझे पूरी तरह से खींचने की कोशिश हुई लेकिन मैं खींचा नहीं। आप उनके इन अल्फाज को सुनिए, खुद देखिए रवीश कुमार क्या कह रहे हैं और मुमकिन हो सके तो उनके नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और जो सच बोलते हैं उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे।
आएंगे आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं YouTube पर ही नजर आऊंगा, NDTV इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आजाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। मैंने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ही बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।